Hello everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to pursue the same topic, William Shakespeare, but the question is a bit different, which is related to the tragedy of William Shakespeare. So let's get started. So the question goes like this: William Shakespeare tragedy has some peculiar significance. How and why describe it? So, before starting any answer, as I've already mentioned before, that we are going to have a very solid introduction to it. So, you can just prepare one intro to attempt the same topic, that is William Shakespeare. So, you can write the same one. So here also we have written like this: Ki William Shakespeare is the greatest signature of English literature, a poet, dramatist who took literature to a great height and glory, as according to Ben Jonson. See, you can learn two or three quotations given by a great critics, and you can add that one to your every answer, right? Because and yes, one thing I also want to add, that you should choose such quotations which you can add in every answer, like it should be a universal aspect. So here, just like Ben Jonson say for William Shakespeare, that Shakespeare is not only the poet of his age but of all the times, and not only the wonder of the stage but the star of the poets. So before starting, as a tragedy, we should know what tragedy is. So we will write about the definition of tragedy. First point to the answer is: the word tragedy was derived from the Greek word tragedia, which means the Song of God. A Shakespearean tragedy is a play penned by Shakespeare himself, or a play written in the style of Shakespeare by different authors. So here we have well explained about the term tragedy, like from where it has been taken and what is its meaning. And according to A.C. Bradley, a Shakespeare tragedy is essential tale of suffering and calamity conducting to death. A.C. ब्रेडली ने जो डेफिनेशन दी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, वो क्या है कि एक टेल है जिसके अंदर सफरिंग है और दिक्कतें आती हैं और लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है. Shakespearean tragedy has got its own features which distinguish it from other kinds of tragedies. कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसकी जो फीचर्स हैं वो अलग हैं, जो उनको बनाती हैं एक अलग ऑरा देती हैं और एक अलग आस्पेक्ट तैयार करती हैं. शेक्सपियर इज़ मोस्टली इन डेप्थ टू एरिस्टोटल, और यहाँ ये इन्होंने जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है किसका किससे कॉपी किया इन्होंने, बेसिकली कुछ आस्पेक्ट्स इन्होंने एरिस्टोटल से लिए फॉर हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी. ऐसा एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है वो क्या है कि अ ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो हैव मैग्नीट्यूड, complete in itself, in appropriate and pleasurable language, in dramatic rather than narrative form, with incidents arousing pity and fear. मतलब ऐसी टेल है जिसके अंदर हम पिटी अराउज होती है, और अलॉन्ग विद दैट वेयर इज विद अकम्पलिश कैथारसिस ऑफ पिटी एंड फेयर. और जो ऑडियंस जो देखते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, एक भय क्या कर देती है, पैदा कर देती है. शेक्सपियर असर्ट्स वेरियस एलिमेंट्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी उसके क्या क्या फीचर्स थे. उसके अंदर एक ट्रेजिक हीरो है जो बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी का होता है, ठीक है. ही कैन बी अ किंग, अ ग्रेट सोल्जर, अ स्ट्रगल बिटवीन गुड और ईविल होता है. सेकंड पॉइंट हमार्शिया होता है. थर्ड पॉइंट कैथारसिस होता है. फोर्थ पॉइंट सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं, कुछ कॉमिक रिलीफ भी मिलते हैं, ठीक है. ये हमारे क्या है, मेन फीचर्स हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी के. ओके, उसके बाद में a tragic hero is one of the most significant element of Shakespeare tragedy. A tragic hero must be a towering personality in the kingdom of a person who holds a high rank, often king, prince, or general. The hero is such an important person that his death gives rise to turmoil, disturbance throughout the land. से देखो, अब हमने पहले क्या बताया, हमने एज शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया, ठीक है, क्रिटिक्स क्या कहते हैं शेक्सपियर के बारे में, फिर हमने ट्रेजेडी को डिस्क्राइब किया, फिर हमने डेफिनेशन ली अकॉर्डिंग टू A.C. ब्रेडली. उसके बाद में हमने ये बताया कि विलियम शेक्सपियर इन डेप्थ है एरिस्टोटल के, जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है वो हमने बताया. एंड लेटर वी हैव जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एज व्हेन वी गो थ्रू द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़, कि उसमें एक टावरिंग पर्सनालिटी हमारा हीरो होता है जिसका एक ट्रेजिक एंड होता है, स्ट्रगल गुड और इविल के बीच में होता है, मार्शिया होता है, कैथारसिस होता है. और अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द ट्रेजिक हीरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड सिग्निफिकेंट
एलिमेंट इन द शेक्सपियर ट्रेजेडी। और जो ट्रेजिक हीरो होता है वो क्या होता है, टॉवरिंग पर्सनालिटी होता है, किंग होता है, ठीक है। द हीरो इज सच एन इंपॉर्टेंट पर्सन कि उसकी जो डेथ होती है उसके कारण जो पूरे किंगडम में क्या होता है, टर्मोइल आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जब हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में ट्रेजिक हीरो होता है, वो एक टावरिंग पर्सनालिटी होता है और उसकी डेथ के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है किंगडम के अंदर। As in the play, as in the play Hamlet, Hamlet is the prince of Denmark, and because of his tragic flow of indecisiveness, he leads a tragic end which leads great turmoil in the land of Denmark. अब यहाँ पे हमने हैमलेट का एग्जाम्पल लिया। हमें पता है हैमलेट एक बहुत ग्रेट ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और हमें बताया गया कि हैमलेट के अंदर प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, एंड बिकॉज ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लो, और ट्रेजिक फ्लो क्या था प्रिंस ऑफ डेनमार्क का, कि उसकी इनडिसिसिवनेस, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, उनका ट्रेजिक एंड हो गया, और उसके कारण लैंड ऑफ डेनमार्क पे बहुत ग्रेट इम्पैक्ट हुआ है। एज हेमलेट सेज, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। सो दिस क्वोट शोज द इनडिसिसिवनेस ऑफ प्रिंस हेमलेट. Up in the play Macbeth, we find the towering personality of general, which he won the battle from Fortinbras and Norway, and which is address him as all hail to the theme of Glamis, all hail to the theme of Cawdor, all hail to King of Scotland to be. तो यहाँ पे सेकंड हमने पहले एग्जाम्पल देखिए, जो टावरिंग पर्सनालिटी वो हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और उसकी इनडिसिसिवनेस के कारण उसका क्या हुआ, ट्रेजिक एंड हो गया। और उसकी कोटेशन कौन सी थी जो उसकी इनडिसिसिवनेस को शो करती थी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, दिस यू हैव टू लर्न। ओके, सेकंड एग्जाम्पल हम लेंगे वो मैकबेथ का होगा। इसके अंदर जर्नल था मैकबेथ, और उस किससे जीत के आया था, वो बैटल जीत के आया था फोर्टिनब्रास से जीत के आया था। और जब वो आ रहा था तो विचेस ने उसको एड्रेस किया उसकी ग्रेटनेस के कारण, कि अभी तो थेम ऑफ ग्लैमिस हो, फिर थेम ऑफ काउडोर, एंड सून टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। दस इज ग्रेटनेस कैन बी नोन इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले, और इससे उसकी जो ग्रेटनेस है वही हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है प्ले के। वेर एज हिज लस्ट फॉर पार, लेकिन जो उसकी लस्ट ऑफ पार थी वो क्या हुआ, उसका ट्रेजिक फ्लो बना उसके कैरेक्टर में, और इस एंड में उसका क्या हो गया, ट्रेजिक एंड हो गया प्ले के अंदर। एज ही हिमसेल्फ डिपिक्ट्स हिज इविल नेचर बाय सेइंग, और जो जो मैकबेथ है वो खुद अपनी जो नेचर है ट्रेजिक फ्लो का वो दिखाता है। उसकी जो वर्डिंग्स है, उसके जो कोट हैं क्या है, लुक लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड बी द सर्पेंट इनसाइड इट, कि बाहर से तो एक अच्छे फ्लावर की तरह दिखो लेकिन रियल में अंदर से आप क्या हो, एक सरपेंट हो। सो these two important personality from two different tragedies you can write down in your answers. The third one I have taken is King Lear, a renowned tragedy of the King of Britain, who because of flattery and blindness in recognizing true nature meets tragic death. Thus all hero are a towering personality. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने ट्रैवलिंग पर्सनालिटी का किया, हमने एग्जाम्पल लिए। थर्ड हमने किंग लियर का लिया जो ब्रिटेन का किंग था, और क्योंकि उसकी फ्लैटरी उसकी जो बेटियों ने नहीं, उसकी बेटी ने नहीं की, जिसके कारण, और वो समझ नहीं पाया ब्लाइंडनेस के कारण कि कौन सी बेटी उसको रियल में प्यार करती है, उसके कारण क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। और ये क्या था, एक ग्रेट टावरिंग पर्सनालिटी था किंग लियर भी, ठीक है। तो ये टावरिंग पर्सनालिटी होगी, और इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर मिल गया जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हमें देखने को मिलता है। सो ये हमने सेकंड जो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया, जो हम ट्रेजेडी में अटैम्प्ट करेंगे आंसर में, कि ट्रेजेडी को एक्सप्लेन किया आपने, ठीक है, ट्रेजेडी कहाँ से डिराइव हुई है। सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया कि जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हीरो हैं वो टावरिंग पर्सनालिटी हैं, और फिर तीनों का आपने एग्जाम्पल दे दिया। किस किस का एग्जाम्पल दिया आपने हैमलेट का दिया, उसकी कोटेशन लिखी, आपने मैकबेथ का दिया, उसमें कोटेशन लिखी, उसके बाद में आपने किंग लियर का दिया। अब थर्ड पॉइंट हो गया स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल इज another important feature in Shakespeare tragedy. Most of them deal with supremacy of evil and suppression of God. As Edward Corden says, its subject is a struggle of good and evil in the world. अब यहाँ पे जो एक लिंक है, स्ट्रगल दिखाई जाती है किसके बीच में, गुड और इविल पार के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी जो हमारे क्रिटिक एडवर्ड कॉवडिन, उसके आप क्या लिख सकते हो, कोटेशन लिख सकते हो। फोर्थ, हमार्शिया इस अब हमार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में। सॉरी, सो हमार्शिया इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड hamartian, which means to miss the mark or to err. In the word
works, hamartia refers to the hero tragic flaw. एवरी हीरो फॉल्स ड्यू टू सम ऑफ द फ्लो इन हिज करेक्टर. तो हमार्शिया क्या है? हमार्शिया एक ग्रीक वर्ब से लिया गया है और इसका मतलब है मिस द मार्क और टू अर्न. हमार्शिया क्या है? एक ट्रेजिक फ्लो है जो एक करेक्टर के अंदर होता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उसका करेक्टर का फॉल हो जाता है. ठीक है. और हेमलेट में क्या था? उसकी इनडिसिसिवनेस थी. ठीक है. जिसके कारण क्या हुआ? उसका ट्रेजिक फ्लो हो गया. तो दिस इज हमार्शिया. नेक्स्ट हमारा है कैथारसिस, जो क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में. और हमारे कैथारसिस का मतलब है क्लिनजिंग. जब ऑडियंस इमोशनल हो जाती है शेक्सपियर की ट्रेजेडी पढ़ के, तो क्या है, a Shakespearean tragedy gives us an opportunity to feel pity for certain characters and fear for another, almost as if we are playing the roles ourselves. This catharsis depicts the release of the audience emotion through empathy with characters. When character feel very pity for the hero who meet the tragic fall. So this is a major feature of William Shakespeare ट्रेजेडी. कैथारसिस में क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है जब वो ट्रेजेडी पढ़ती हैं तब वो फील कर पाती हैं कि कैसे जो हीरो है इतनी टावरिंग पर्सनालिटी का था और उसका ये एंड हो गया. तो उसमें मतलब इमोशंस आउटपोर कर रहे हैं कैथारसिस के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट सुपरनेचुरल एलिमेंट है. अनदर की एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर ऑफ ओ एंड वंडर, समटाइम्स fear. In Hamlet, it is the ghost who tells Hamlet his father was killed by his uncle Claudius. Similarly, in Macbeth, the witches, the ghost of Banquo, vision of dagger, all add supernatural remarks. The witches play significant role who are responsible for motivating Macbeth to resort to murder in order to ascend the throne of Scotland. As according to Bailey, the tragedy of Macbeth is the greatest murder done in supernatural atmosphere by Shakespeare. Supernatural elements बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है शेक्सपियर की ट्रेजेडी के. हैमलेट में जो घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट का फादर का, वो उसको बताता है कि जो अंकल क्लोडियस हैं उन्हीं का वही रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने मुझे मारा है. वैसे ही मैकबेथ के अंदर सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, विचेस अपीयर होती हैं, सुपरनेचुरल हवाएं तेज चलती हैं, नाइट का सीन है, जो घोस्ट आता है बैंको का घोस्ट आता है, जो डैगर का विजन है जो उसको दिखता है. ऑल ये सारी चीज़ें क्या रिमार्क्स डालती हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट का ही रिमार्क्स डालती हैं. एंड विचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मैकबेथ के अंदर. ठीक है. और जैसे कि बेली ने भी कहा है कि ट्रेजेडी जो मैकबेथ की है वो क्या है, ग्रेटेस्ट मर्डर किया गया सुपरनेचुरल एलिमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करके शेक्सपियर के द्वारा. उस जो 7th पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा कॉमिक रिलीफ इन अनदर एलिमेंट दैट शेक्सपियर यूजेस इन दिस प्ले. द यूज ऑफ फूल और क्लान इन द ट्रेजेडी become in the tragedy balance the play. As Fool only appears in the tragedy after an intense and bloodshed scene, as according to Isaac Asimov, it is the greatest secret of the successful fool that he is not फूल एट ऑल. तो जो कॉमिक रिलीफ है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर, आपने देखा होगा कि एक पहले तो फूल दिखा रखा है बट रियलिटी में वो फूल नहीं होता है. ठीक है. वो डाला गया है क्योंकि वो आपको कुछ प्रीच करना चाह रहा है. अलॉन्ग विद दैट कॉमिक्स सीन तभी आते हैं जब कोई इंटेंस चीज़ें हो चुकी होती हैं, उसके बाद में ही ये कॉमिक सीन एक नॉर्मल करने के लिए ये डाले जाते हैं. इन हैमलेट वी हैव grave digger which appears after the Ophelia's suicide. In Macbeth we have Porter, the fool in King Lear. All lighten the mood as well as provide insight into the plot. So these are the important fools that we can see in William Shakespeare tragedy. So that's all from my side, and I think that you can write down the conclusion by your own now. और जो मेन फीचर्स थे शेक्सपियर की ट्रेजेडी के वो हमने डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद सम इंस्टांसेस दैट वी हैव टेकन फ्रॉम हिज ग्रेट एंड रिमार्केबल ट्रेजेडीज़. So if you like my video, if you like my notes, so please do like and share my video and subscribe to my channel. That's all from my side. Have a nice day.